Hello everyone, welcome to yet another class of social science, and today we are going to conclude with the remaining topics of the chapter human environment, settlements, transport and communication. We are going to take the the remaining topics transport and communication in this video. In the previous video we have studied about the settlements, how the settlements, how many types of settlements are there, what are settlements, ये सब हम लोग first video में देख चुके हैं. Now another thing that is affecting the human environment is the transport. Transport, this is a very easy topic and you are studying this topic since long, so it's not much here to make you understand, each and everything. So we'll just have a general discussion about these things, right? So what do you understand by transport? Transport क्या होता है? It is the means by which things and goods or and people move. जिस साधन के द्वारा व्यक्ति और सामान एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं that is transport. In the early years, जब human beings have evolved, so what was the means of transport at that time? In the early historical period, people don't have any means of transport. They use just animals as a means of transport, and because other artificial means of transport that were not available there. So जो उस समय पर लोग क्या यूज करते थे? एनिमल्स यूज करते थे, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बहुत ज्यादा समय लगता था. ठीक है. देन लेटर ऑन, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन्वेंटेड, जो जिसमें व्हील को यूज करके इट मेड द ट्रांसपोर्ट वेरी इजी फॉर पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोग गाड़ियों का यूज करने लगे और एक जगह से दूसरी जगह जाना जो था वो इजी हो गया. बुलक कार्स एंड हॉर्स कार्ट, इस तरह की कार्स यूज करते थे. दे यूज्ड एनिमल्स इन द कार्स एंड दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. ठीक है. सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम 4 डिफरेंट वेज में डिवाइड करते हैं, एंड यू नो दीस थिंग्स वेरी वेल. रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. What are roadways? Roadways क्या है? This is the most commonly used means of transport by the people, और ये लोगों को help करता है shorter distances travel करने में. It is the most convenient and most used means of transport, roadways. ठीक है. Roadways में national highways, state highways. You know that in our country there are many national highways, state highways, district roads, city roads, even the village roads जो होते हैं, these are all a part of roadways. Recent development क्या है? आपने देखा होगा expressways have been constructed. expressways बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत good quality roads हैं. They are very broad and very good quality roads which have made the traveling more easy and more faster as compared to the previous one. Similarly, there is another road which is called golden quadrilateral. Quadrilateral का मतलब क्या होता है? Geometrical figure which has 4 sides, 4 sides है. तो ये जो golden quadrilateral है has been constructed by National Highway Authority of India Limited, और ये जो है ये चारों मेट्रो सिटीज को इंडिया में कनेक्ट करता है, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. इन चारों जो मेट्रोस हैं, मेट्रो सिटीज हैं, इन चारों को कनेक्ट करते हुए दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज बीन नेम्ड एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो जो रोड्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, बीइंग डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ रोड्स. ठीक है. मेटल रोड होती है, अनमेटल रोड्स होती है. मेटल रोड्स मतलब जो कि पक्की सड़क होती है, पक्का रोड इसको हम कह सकते हैं. अनमेटल रोड्स जो कि कच्ची सड़कें होती हैं, जो कि पक्की सड़कें नहीं होती, जिनमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो कंक्रीट या जो मेजर जो मॉडर्न जो मटेरियल है रोड कंस्ट्रक्शन के वो यूज नहीं किए जाते हैं, वो अनमेटल रोड्स हैं, कच्ची रोड्स. ठीक है. नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, और वी कैन से द नेटवर्क ऑफ रोड इज क्वाइट वेल डेवलप्ड इन द प्लेन एरियाज. जो प्लेन्स हैं वहाँ पर रोड्स को बनाना बहुत ईजी होता है, एंड देयरफॉर द प्लेन एरियाज हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स. बट इट्स नॉट दैट कि दूसरी जगहों पर रोड्स नहीं कंस्ट्रक्ट किए गए. देयर आर अ लॉट ऑफ road manufacturing in forest areas, in desert areas also, and we have this Manali Leh highway in our country,
which is one of the world's highest roads, मतलब इतने हाइट पर जाकर जो रोड कंस्ट्रक्ट हुई है वो मनाली लेह हाईवे जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया गिना जाता है. So there are construction of roads in these parts of the country also. ठीक है, डिफिकल्ट टेरेन्स पर भी रोड्स को बिल्ड किया गया है. नाउ सबवेज और अंडरपास क्या होते हैं, जो कि अंडरग्राउंड रोड्स होते हैं, जो कि जमीन के नीचे बनाए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सबवेज या अंडरपास. और ये किससे बनाए जाते हैं, जिससे कि जो अपर रोड का ट्रैफिक है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा कम हो जाए. और सिमिलरली सबवेज जो है दे आर यूज्ड बाय द पेडेस्ट्रियंस, जो कि पैदल चलने वाले लोग हैं, वो सबवेज से रोड को क्रॉस कर सकते हैं, उन्हें इतने ज्यादा ट्रैफिक को क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा. तो इस वजह से रोड के ऊपर जो पेडेस्ट्रियंस की सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए सबवेज और अंडरपास को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, नाउ वी कम टू रेलवेज. रेलवेज आर अगेन वेरी मच डेवलप्ड इन आवर कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड. हमारी कंट्री का जो रेलवे नेटवर्क है इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया. बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है. रेलवेज बहुत यूजफुल हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए वी कैन यूज रोड्स. ठीक है, बट इफ वी हैव टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दीज रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, अब रेलवे जो है उसका जो डेवलपमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैसे शुरू हुआ, जस्ट आफ्टर द invention of iron and because of the industrial revolution which started in England. Industrial revolution या जो हम कहना चाहिए जो क्रांति आई इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में वो इंग्लैंड से जो शुरू हुई उसकी वजह से. और स्टीम इंजन का जब आविष्कार हुआ, स्टीम का जब आविष्कार हुआ उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से ये रेलवेज जो है ये बहुत ज्यादा डेवलप हुए, रैपिड स्पीड पर डेवलप हुए. ठीक है, तो फिर स्टीम इंजन का यूज किया जाने लगा और अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है. सो अब वी आर यूजिंग डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक इंजन्स, जिनकी वजह से द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स कैन बी इम्प्रूव्ड मच फास्टर. सिमिलरली सुपर फास्ट ट्रेन्स आते हैं. यू हैव हर्ड अबाउट बुलेट ट्रेन्स. कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि अब ट्रेन जो है वो बहुत ही कम समय में लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व्हिच हैव रिजल्टेड इन इम्प्रूविंग द स्पीड ऑफ द रेलवेज. ठीक है, नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ट्रांस-साइबेरियन रेलवेज. ट्रांस-साइबेरियन रेलवे का नाम सुना है. इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक. रेलवे जो जहाँ पर एक रेल चलती है, द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्ट रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट. रशिया जो कि बहुत बड़ा कंट्री है उसके एक कॉर्नर से चल के दूसरे कॉर्नर तक जाता है ये ट्रांस-साइबेरियन रेलवे. बहुत बड़ा रेलवे लाइन है. ठीक है, so we have studied about it's not again like railways are quite well developed in the plain areas, but in difficult terrains also railways have built their own railway lines. Like you must be knowing that up to Katra we now have railway lines. जो वैष्णो देवी जब जाते हैं तो कटरा तक अब रेलवे लाइन्स होगी, which is a very difficult terrain. पहाड़ों को काट कर वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया गया है. सो क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं आ रही हैं, तो उनका यूज करके अब डिफिकल्ट टेरेन्स पर भी रेलवे लाइन्स को प्लान किया जा रहा है, रेलवे लाइन्स को बिछाया जा रहा है. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज वाटरवेज. वाटरवेज वी कैन से इट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्योंकि जब पहले के ज़माने में जबकि एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था, रेलवेज नहीं थे, रोडवेज भी नहीं था, तब से वाटरवेज लोग यूज करते थे. ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग in the transport of heavy and bulky goods. जब बहुत सारा बल्क में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो इनफैक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाना होता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंचाना होता है, तो वाटरवेज इज वेरी वेरी हेल्पफुल.
वाटरवेज को यूज करते हैं। ठीक है, वाटरवेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और ये क्या होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज का क्या मतलब हुआ, इनलैंड मतलब विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जहां पर अंदर ही कंट्री के अंदर ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो इनलैंड वाटरवेज यूज किया जाता है। एंड सिमिलरली सी रूट्स दे कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर, और वी कैन से वन कॉन्टिनेंट टू another. We have to transport the goods from one country to another, merchandise वगैरह बहुत सारी चीजें से ट्रांसपोर्ट होती है, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, तो वो चीजें because it is not possible to carry them by एयर ट्रांसपोर्ट, एयरलिफ्ट करना कई बार बहुत हैवी गुड्स को इट्स नॉट पॉसिबल, तो वाटरवेज इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और इनलैंड वाटरवेज व्हिच आर मेंट फॉर नेविगेशन इन द कंट्री itself, within the territory of a country। तो हमारे यहाँ जो नेविगेबल इनलैंड रूट्स है, इनलैंड वाटरवेज है, वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए नेविगेबल रिवर, और यहाँ पर इनलैंड वाटरवे अवेलेबल है हमारी कंट्री में। सिमिलरली इन ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका, दीज आर इनलैंड वाटरवेज, राइट। एंड सी रूट्स, so you all know that the ships carry big ships, cargo ships, they carry the goods or the merchandise and big bulky things from one country to another। और इसके लिए इसके कहाँ पर ships आते जाते हैं, we have ports for them, they ships start from one port and then they end their culminate their journey at another port in a different country। तो ये ports पर, ports किसको कहते हैं, वो जगह जहाँ पर आकर शिप्स रुकते हैं और वहाँ पर सामान लोड अनलोड होता है। ठीक है, सो देयर आर मेनी फेमस पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन आवर कंट्री वी हैव दिस मुंबई पोर्ट इज, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है, जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर पोर्ट्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर शिप्स आते जाते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ द बिगेस्ट important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, then this New York, Los Angeles in North America, then Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. These are some important ports of the world where water transport is carried out, right? So now we come to the last means of transport, that is airways. Airways means transport through the air, and it is considered to be one of the most, it is considered the fastest means of transport, but at the same time it is also the most expensive means of transport because the cost of the fuel which is required is very high, and therefore the air transport is an expensive means of transport। ठीक है, now it is air traffic is also adversely affected by weather। It depends on the weather conditions where the air transport will carry out normally or it will face difficulties। यहाँ पर क्योंकि fog, storm, कोई भी weather की अगर problem आती है तो it affects the air transport। It is the only means of transport which reaches the remote and the most inaccessible areas of the world। ऐसी जगह पर जहाँ पर जाना by roadways, railways, waterways possible नहीं, मतलब बहुत remote areas हैं, most inaccessible areas हैं, वहाँ पर जाने के लिए air transport like helicopter is the most convenient way to reach at such places। Similarly, at the time of natural calamities, जब natural calamities होती है तभी in the relief work to take out the people from that particular area, helicopters are very very helpful। उनकी help ली जाती है relief work carry on करने के लिए। Similarly, जो ऐसी जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, ऐसी जगहों पर भी रिलीफ वर्क के लिए लाइक कपड़े पहुंचाने हैं, मेडिसिन पहुंचाने हैं, खाना पहुंचाना है लोगों के लिए। So it is the best means of transport which is used at such times। क्योंकि इस समय पर क्या होता है कि जल्दी और inaccessible areas में पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है, therefore एयरवेज और हेलीकॉप्टर्स का बेसिकली यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो ये बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है,
Some of the important airports of the world are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt, Cairo. These are some of the major airports of the world. ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हाउ वी यूज रोडवेज, हाउ वी यूज रेलवेज, वाटरवेज क्या है, एयरवेज क्या है. सो इट इज नॉट मच डिफिकल्टी फॉर यू पीपल. आई होप कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में. Now we come to the next and the last topic of this chapter, that is communication. Communication means exchange of ideas from one person to another. जब हम अपने ideas, अपने messages, अपनी feelings एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? That is called communication. हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था सिविक्स में, अभी अंडरस्टैंडिंग मीडिया, उसमें हम कम्युनिकेशन को काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं. So I hope you remember that कि कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन भी आता है, पर्सनल कम्युनिकेशन भी आता है. पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. और मास कम्युनिकेशन जब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. ठीक है, लाइक दैट टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक व्यक्ति जो है एक जगह से बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांसमिट हो रही है, बहुत सारे लोगों को तक पहुंच रही है. therefore these are the means of mass communication. तो जो आजकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन आया हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है. अब आप एक कोने में बैठ के वर्ल्ड के किसी भी दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति के साथ आप बात कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनसे मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. सैटेलाइट्स हमने पढ़ा था मीडिया में, दैट सैटेलाइट्स का यूज होता है. सैटेलाइट्स क्या करते हैं? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट. तो जो सैटेलाइट्स है नॉट ओनली फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इवन फॉर अदर थिंग्स लाइक वेदर फोरकास्ट के लिए, कहीं पर मिनरल वेल्थ है उसका पता लगाने के लिए. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे यूजेज हैं जो कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटरनेट. ये तो बिल्कुल क्रांति है क्योंकि अब सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए वायर्स की जरूरत नहीं है. सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट द यूज ऑफ वायर. ठीक है, सिमिलरली इंटरनेट क्या चीज है जिससे हर वो चीज संभव हो सकती है जो इंसान सोच सकता है. बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में, आप बिजनेस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, बहुत कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हम ये मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ये वायरलेस सिस्टम का या हम इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे. तो ये सब एक क्रांति के रूप में है और हमें उसका मैक्सिमम यूज करना चाहिए फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर आवर इम्प्रूवमेंट. तो दिस हैज मेड वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. वर्ल्ड जो है वो इतना क्लोज आ चुका है इस कम्युनिकेशन की वजह से, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, दैट इट हैज बिकम अ ग्लोबल, वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा दूर नहीं है. एवरीथिंग इज under reach, everything is we can communicate with anyone in the world. So this is the result of information evolution and all the technological advances that has taken place in this. So here we complete our chapter which is named Human Environment, Settlements, Transport and Communication. This chapter हमारा complete हो गया. I hope you have understood. So bye bye.